डू यू सी, नो यू डोंट सी, लॉन्ग टाइम नो सी एंड आई एम बैक जी। हमने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं कि अक्सर रूहें और जन्नात अपने आप को चीज़ों से या फिर जगहों से अटैच कर लेते हैं, और वो चीज़ें या जगह अक्सर पुरानी होती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ब्रांड न्यू चीज़ के साथ भी ऐसा हुआ हो। लेकिन ऐसा ही एक वाक़या पेश आया एक ख़ातून के साथ, जिन्होंने एक ब्रांड न्यू साइकिल ख़रीदी और अगली सुबह उनके साथ अजीब से वाक़यात शुरू हो गए। एक सुबह वो ख़ातून अपने घर से ऑनलाइन काम कर रही होती है, तो वो बाइक 2 से 3 दफ़ा गिरती है, जिसको वो दोबारा जाके खड़ा करती है, और सही खड़ा करने के बावजूद भी वो थोड़ी देर बाद फिर गिर जाती है। अब अजीब बात ये नहीं है, अजीब तब हुआ जब वो बाइक एक दफ़ा फिर से गिरती है और घर के किसी हिस्से से एक स्ट्रेंज टैपिंग साउंड आना शुरू हो जाता है। तो वो ख़ातून डिसाइड करती है इसको फ़िल्म करने का। Sitting at my desk and my bike's fallen over again. It's the second time today, and it's starting to get weird. I don't even dare go down there. Okay, there's no one here. There's no one in the fucking house. No doors open, just the bike fell. Like, there's no one here, look. There's no one here. Let's go stand. Look, on your bike. It's done it again, but look. 3 times, the fucking wheel's spinning. Oh, Jesus Christ. Oh, I don't want to be near it. There's no one fucking here. I made a right bang this time. I had my door shut though. Fuck. Shh. I know there's no one here. That was spinning. Look how much it's moved. What? It was right over there. I don't understand. I don't want to touch it. The handlebars are right over it. But if it stood, why would it be like that? I'm confused. I'm gonna move it. There is fucking no one. I'm freaked out now. फिर उस खातून ने उस बाइक को एक स्पेयर रूम में शिफ्ट किया और उसको इस तरह से खड़ा किया कि वो हर तरह से सिक्योरली खड़ी रहे। लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे वो खातून बेइंतहा खौफज़दा हो गई। Seriously now. Things shaking. That's the room it's in. Oh, please tell me, please, please. Fuck. I'm terrified. I'm not gonna lie. Oh, you didn't. I don't want to do it. Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Get me out of here now! Get me out of here now! Can't do this anymore. I'm shaking. Right, fuck this. Right, the front door is in front of me to the right, and there is nothing happening right now, but I need to get the fuck out of here, so. I don't like this. I'm gonna go to my friend's house. Fuck. Ah, pray for me, pray for me. Ooh! Fuck this house. उस वक्त तो वो उस घर से डर कर भाग गई थी, लेकिन फिर वो अपने नेबर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ आकर घर को इंस्पेक्ट करे और देखे कि आखिर क्या हुआ है, और फिर उनको ये सब दिखाई देता है। So that wasn't. I was on the floor. It's still down, yeah. I told you, it's smashed. Yeah, yeah. Weird. That's pretty weird enough, but yeah. Please check over the swimming because I'm scared. I told you, I'm busy. Yeah, there was no one in. You say it was just like the wall? You can find ways or... Well, the wall to the room where my bike is. I left my bike in there, and then it just went mental. I don't know. Right, okay, fuck. What? Is this some kind of joke or something? Because this is, It's just my bike in the bedroom. yeah, but it's pretty messed up in here. What the fuck are you talking about, sir? Don't, Yeah, don't mess with me, because no, this is. seriously. You know how much this has scared me, though. Yeah, but seriously, it's not... I Don't don't think even society dare go left in. it, like, Oh, this is. Ugh. Why is? I'm I just. don't know what the fuck. Oh, fuck off. Oh no. Yeah, that's... This is the spare room, sir. Yeah, I'm moving out. So, anybody want to buy a bike? Let's get out of here, Seth. This is not normal. कमरे की हालत देखकर उसकी अपनी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसको पता चल गया था कि उसकी बाइक हॉन्टेड है और वो जो भी चीज़ है अब उसके घर को भी अफेक्ट कर रही है।
कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप इस बाइक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। इफ़ यस तो हम फ़ौरन बुक करवा लेते हैं। फिलीपींस की एक खातून ने सोशल मीडिया पे अपने हॉन्टेड अपार्टमेंट के बारे में पोस्ट किया कि वो रिसेंटली एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है। शुरू में सब चीज़ें नॉर्मल थीं, फिर कुछ स्ट्रेंज वाक़यात शुरू हुए, जैसे उसके कुत्ते का दरवाजे की तरफ देखकर मुसलसल भौंकना, रातों को दरवाजे पे नॉकिंग का साउंड आना, अपार्टमेंट के बाहर से एक औरत और एक बच्चे के रोने और चीखने की आवाज़ें आना। एक दिन उसने ये सब कुछ अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। उस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स थे, एक में वो खुद रह रही थी और एक खाली था, यानी उस फ्लोर पे वो अकेली रह रही थी। उसने ये बात सिक्योरिटी गार्ड को बताई और उसने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। यहाँ से कहानी लेगी अब एक खौफनाक मोड़। कुछ दिन बाद उस लड़की को फिर वही आवाज़ें आती हैं, लेकिन अब की बार जो आवाज़ें आती हैं किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। ये सब शोर सुनकर उस खातून ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड से रब्ता किया और उसको ये फुटेज दिखाई। फुटेज देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बहुत खौफज़दा हो गया और फिर उसने बताया कि इसी अपार्टमेंट में आज से 12 साल पहले एक आदमी ने पीकर अपनी बीवी और अपने एक छोटे बच्चे को मार दिया था और उसके बाद उसने ख़ुदकुशी कर ली थी और आज तक ये अपार्टमेंट कभी नहीं बच सका। और मुझे लगता है मुझे नज़ला हो गया है। एक कपल की आधी रात को अचानक शोर की आवाज़ से आँख खुलती है। जब वो देखते हैं उठ के तो ये आवाज़ें बेसमेंट से आ रही होती हैं, जैसे बेसमेंट का दरवाज़ा कोई मुस्तकिल खोल रहा है और बंद कर रहा है। हस्बैंड हिम्मत करके जाता है कि वो चेक करे कि आखिर क्या मामला है, लेकिन फिर वो होता है जो उसने तसव्वुर नहीं किया था। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक औरत को महसूस हुआ कि उसके घर में कोई स्ट्रेंज एक्टिविटी हो रही है और ये एक्टिविटी ज़्यादातर रात के वक्त ही पेश आती है और स्पेशली उसके रूम में। तो उसने डिसाइड किया कि अपने कमरे में सिक्योरिटी कैमरा लगाए और देखे कि आखिर होता है क्या है। एक रात वो सो रही थी तो उसको महसूस हुआ कि उसकी बिल्ली जो उसके साथ ही सोती है वो कुछ बेचैन सी है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आया। अगले दिन जब उसने कैमरा की फुटेज चेक की तो ये देखा। इस क्लिप में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि बिल्ली को किसी अनसीन फोर्स ने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया और फिर कहा होगा अपने काम से काम रख। इस फुटेज की मेरे पास कोई बैक स्टोरी तो नहीं है, लेकिन वैसे आपने सुना होगा भागते चोर की रंगोटी। चले मैं आपको भागते चोर की पतलून दिखाती हूँ।